safe and all are doing great. Welcome back to my channel Young Tutor, and today we'll be starting with the second chapter of our civics, which is the constitutional designs. As our exams are approaching, so there was a demand for this chapter of social science. So let's start with the social science civics chapter number 2, constitutional design. If you have not seen my video for the first chapter, the link is in the description box below. Go there and look forward for seeing my first video. So this is the part 1 of the video of the constitutional design. So first we're going to talk about what is the meaning of constitution. What is constitution? असली में constitution होता क्या है? Is it just a book written with rules? What is constitution? Is it just like a Bible which people follow, or is it just like a document which people just take to review? We need to understand what is meant by constitution. So my friends, constitution is a set of rules to establish a political framework of a country. If we need to know that what type of a political framework means that what type of political policies a country is following. So in order to see the political framework, to establish a political framework of a country, we need to have a constitution. So basically in the today's lecture we'll be talking, so in this chapter we'll be talking about the two main important constitutions, which is the Indian constitution and which is the South African constitution. In our today's class, in our today's lecture, we will be primarily be focusing over the South African constitution. The South African constitution is what we'll be doing in our today's lecture. South Africa, apartheid. It is it. So these are some terms which you need to know. कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए. पहला टर्म है अपार्थाइड. अपार्थाइड एक ऐसा टाइप का रेशियल कलर डिस्क्रिमिनेशन है जो सिर्फ यूनिक था साउथ अफ्रीका में. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट वाज यूनिक इन साउथ अफ्रीका. एक ऐसा टाइप का रेशियल कलर डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब कि ब्लैक है, वाइट है, कलर्ड पीपल हैं, तो उनको अलग अलग करना, अलग अलग करके उनको डिस्क्रिमिनेट करना कि ब्लैक पीपल ये काम नहीं कर सकते जो वाइट पीपल कर सकते हैं. सो वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग देम. हम उनको सेग्रीगेट कर रहे हैं. अभी हम पढ़ेंगे इस प्रोसेस को, सेग्रीगेशन भी कहते हैं इन द फर्दर पीपीटीज. चलिए, सो यूनिक इन साउथ अफ्रीका मीन्स कि ये ऐसा एक सिस्टम अपार्थाइड था जो सबसे पहले साउथ अफ्रीका पे ही लागू हुआ था, which started, or South Africa was the place of origin of this type of process or this type of a discrimination. After fighting with apartheid and racial discrimination, they finally got a democratic constitution. So ये थोड़ा सा ending line का types given है कि इतने सालों की जुल्मी यूरोपियन कंट्रीज का जुल्म होने के बाद, अपार्थाइड लेने के बाद, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सहने के बाद उनको फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गया और उन्होंने अपनी एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन खड़ी कर ली थी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. Okay, so let's talk about the struggle against apartheid. Apartheid ke against this racial discrimination ke against struggle. So in the 17th and in the 18th century, European companies in great number came to South Africa and occupied it with arms and forces. Arms and forces को आप you can say ammunition and soldiers as well आप कह सकते हो. So basically what happened in South Africa? So there is a picture, a map of South Africa. This is how South Africa looks. So basically when during the period of 17th and the 18th century, like in India as well, the European companies came as trading companies here, and they were only using a colonial rule. Here in India there was a colonial rule, but here in South Africa you can see that most of the South Africa was occupied by these Europeans, because in इंडिया में क्या था कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और जो ब्रिटिशर्स आए थे वो कम आए थे. सो उनको थोड़ा खतरा था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रैटेजीज अप्लाई की
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पासिंग ईयर्स उन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजीज लगाई कि एंड में उनके पास पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान उन्होंने कब्जा कर लिया. But the situation was a bit different in South Africa. साउथ अफ्रीका में भी यूरोपियन कंट्रीज आई, यूरोपियन कंपनीज आई एज ट्रेडिंग कंपनीज, पर वो बहुत ज्यादा नंबर में आई और साउथ अफ्रीका की तब पॉपुलेशन भी ज्यादा नहीं थी. सो डेफिनेटली इन यूरोपियन पीपल ने अपनी कॉलोनीज इधर खड़ी कर दी कि जितना कि प्रपोर्शन जो था वो नियरली इक्वल था. ऐसे 2:3 या 1:3 ऐसी प्रपोर्शन थी और इंडिया में प्रपोर्शन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी. सो डेफिनेटली सो इनको ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, इन्होंने जैसे ही इनको मौका मिला इन्होंने झपट्टा मार लिया साउथ अफ्रीका के ऊपर. दे स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर. ये हमने एक बाबा जी बनाए हैं इधर. सो देख सकते हो कि ये थोड़े ऐसे गुस्से से हैं, ऐसे थोड़े मतलब ऐसे करके गुस्से से हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सालों की जुल्मी सही है. दे स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल ऑन द स्किन कलर कि भाई ये तो काला है, ये मेरा वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये वाले लोगों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये इधर नहीं जाएंगे. अरे ये तो मेरा वाला चर्च है, ये वाइट पीपल वालों का चर्च है, सो ब्लैक पीपल विल नॉट एंटर हियर. दिस इज माय हॉस्पिटल, दीज आर वाइट पीपल हॉस्पिटल, सो ब्लैक पीपल आर नॉट गोइंग टू इवन एंटर दिस. सो ब्लैक्स, इंडियंस एंड कलर्ड. सो अब कलर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब कि भाई अब ब्लू कलर के भी बंदे आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, ग्रीन कलर के भी ह्यूमंस आते हैं. नो, कलर्ड मीन्स कि जो साउथ अफ्रीका के नेटिव्स नहीं होते, जो अफ्रीका में बॉर्न नहीं होते, या मे बी अगर होते भी हैं देन उनका कलर ब्राउनिश सा टाइप होता है. थोड़ा सा कुछ पीपल होते हैं जिनका पीच कलर होता है, दे आर नॉट कम्प्लीटली वाइट बट बीच का होता है ना, इसका 2-3 शेड्स लाइटर ले लो. फॉर एग्जाम्पल इंडियन जैसे एक टिपिकल ब्राउन कलर होता है इनका, इंडियंस का, those can be identified and colored, the ones who were not completely black or who were immigrants or refugees from other countries. So इनको segregate कर ली गया हर एक चीज से कि भाई ये white people का हॉस्पिटल है, black people लोग इधर नहीं आएंगे, ये white people की ट्रेन है, black people लोग इधर नहीं आएंगे. So जब मैंने ट्रेन का बोला, साउथ अफ्रीका बोला, इज समथिंग ट्रिगरिंग योर माइंड? सोचो सोचो, क्या कुछ ट्रिगर हो रहा है? यस माय फ्रेंड्स, गांधी जी ट्रिगर होता है. हमने पढ़ा था कि गांधी जी जब गलती से अपने उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे पे किए थे, उसके बाद वो वाइट पीपल वालों की ट्रेन के ऊपर चढ़ गए थे, फिर भी उनको ट्रेन से निकाल दिया गया था, धक्के मार के ट्रेन से गिरा दिया गया था. वाई? बिकॉज he was an Indian, he was a colored person, he was supposed to be segregated, but he entered द रॉन्ग अथॉरिटी. उन्होंने गलत अथॉरिटी में एंटर कर दिया. और एंटर भी कैसे किया? ही पेड ट्वाइस द फीस एंड वाज रेडी टू इवन गिव द थ्राइस ऑफ दैट अमाउंट. मतलब उसका 3 गुना, जितने में एक सीट आती है उसके तीन तीन सीट्स लेने का पैसे उन्होंने दे दिए थे, लेकिन स्टिल ही वाज किक्ड आउट ऑफ द ट्रेन just because he was an Indian, just because he was a colored, he was segregated. So this process of segregation from blacks, Indians, colored and from whites is referred as the process of segregation. Remember the term segregate and segregation, blacks, Indians and colored. These are 3-4 important terms. हाँ जी, ये हमारे आगे नेल्सन मंडेला की जो बुक में भी अगर आप खोलोगे अपनी एनसीईआरटी, उसमें आपको बहुत सारे कोट्स दिखेंगे. हियर इज वन सच कोट: इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल until it is done. So here you can see कि जैसे ये है, इसको हमने बोल दिया ये वाइट है, ये बंदा है, इसको हमने बोल दिया ये ब्लैक है. लेकिन ये ग्रे वाला जो है, ये थोड़ा सा ऐसे ऑरेंज सा पीचेस सा टाइप है, ऐसा वाले जो हैं, ये ब्लैक्स नहीं है, ये ब्लैक्स नहीं है, ये कलर्ड पीपल हैं. बिकॉज इनका स्किन टोन जो है ब्लैक से थोड़ा कम है और वाइट से ज्यादा है. सो ये कलर्ड पीपल कहते थे. स्ट्रगल, अब जरा स्ट्रगल देख लेते हैं. African National Congress ANC was run under Nelson Mandela. So ANC करके एक बहुत important कमिटी होती थी, एक पार्टी होती थी जो जो नेल्सन मंडेला जी ने, हमारे नेल्सन मंडेला जी ने चलाई थी, हमारी ANC.
under Nelson Mandela started to fight against apartheid since 1950. So जैसे इंडिया में भी धीरे धीरे करके ऐसी पार्टीज खड़ी हुई थी, सेम प्रोसेस हमारा साउथ अफ्रीका में भी हुआ था, धीरे धीरे करके हमारी पार्टीज खड़ी हुई थी। जैसे 1950 में हमारी एक पार्टी शुरू हुई थी जिसको हम बोलते हैं ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फुल फॉर्म इसका याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसके अंडर ये काम करती थी, नेल्सन मंडेला के अंदर काम करती थी, ये नाम भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसने 1950 में आंदोलन वगैरह खड़े कर दिए कि भाई इसने यूरोपियंस के अगेंस्ट थोड़ा अपना स्टैंड लेना शुरू कर दिया। सो अभी हम इधर से बात करेंगे नेल्सन मंडेला की जर्नी, कि कैसे उन्होंने 28 इयर्स एक प्रिजन में बताए, मतलब हाँ जी जितने इयर्स के हम हैं भी नहीं उसके डबल होगा शायद, कैसे उन्होंने 28 इयर्स, हाउ ही स्पेंट 28 इयर्स ऑफ हिज लाइफ इन प्रिजन। सो लेट्स चेक हिज जर्नी। ओके, सो हम भी देखते हैं कि ANC जो बनी थी वो एक्चुअली में बन चुकी है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेज माय फ्रेंड्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज है ये। सो ANC जो बनी थी वो बनी थी 1912 में, बट इस्टेब्लिश है जब उसने फाइट करना, ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, फाइटिंग फॉर द राइट्स, उसने राइट्स के लिए फाइट करना शुरू कर दिया इन द ईयर 1950, है ना। बनी तो थी ये 1912 में, लेकिन एक्शन जो उसने असली एक्शन लिया वो लिया उसने 1950 में, व्हेन द कमिटी फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम। फिर 10 साल बाद जब वो लड़े 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 लड़े, 10 साल बाद उनको ANC को थप्पा लगा दिया, उनको बैन कर दिया कि भाई ये बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। जैसे याद नहीं इंडिया में हुआ था कि प्रेसेस को बंद कर दिया, कि सेंसरशिप लगा दी, ये सब कर दिया, वैसे ही इन्होंने बोला कि भाई हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा बहुत, ये लोग बहुत ऐसे हल्ला वगैरह मचा रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी तरफ। सो हम ANC पे बैन लगा देते हैं, इन्होंने बैन लगा दिया ब्रिटिशर्स ने। फिर आए हमारे नेल्सन मंडेला जी। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी ने क्या किया, 1960 में प्रोटेस्ट किए। क्या किया नेल्सन मंडेला जी ने, प्रोटेस्ट किए कि भाई नहीं हमें हमारी कंट्री चाहिए। देखो ऐसे पूरा ऐसे पोस्टर वगैरह लगा के पूरा इन्होंने ऐसे प्रोटेस्ट किया। फिर 1964 में जब पीपल और लोग और फ्यूरियस हो गए, उनको और ज्यादा मतलब होता है ना, एक पॉइंट पे आके पीक पॉइंट हो गया दैट पीपल हैव क्रॉस द लाइन, उसके बाद उनको तो फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। सो 1964 में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि प्रोटेस्ट कॉन्टिन्यूड विद मोर पावर, अब और पावर और जोश से शुरू हो गया, ये सोच के कि बैन हो चुकी है ऑलरेडी ANC, फिर भी वो लोग अपना काम और अपना उनका जो मोटिव था वो क्लियर था। सो और लोग जो हैं धीरे धीरे करके हमारी उन्होंने ANC ज्वाइन की, मोर एंड मोर पीपल ज्वाइंड ANC, अमेरिकन नेशनल कांग्रेस। और ये जो प्रोटेस्ट और स्ट्रगल था अब और बढ़ गया, क्योंकि भाई अगर 10 लोग होंगे सो प्रोटेस्ट कम जज्बे के साथ होगा, बट इफ वी एड मोर 40 people to it, if there are 50 people, then definitely our protest would be larger and it would have more voice to it. So और भी ज्यादा इनका शुरू हो गया, नो लॉन्गर रूल थ्रू रिप्रेशन। तो मतलब कि अब इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो है सेंसरशिप वगैरह लगा दी थी, मीडिया पे बैन लगा दिया था, इन पे बैन लगा दिया था। तो अब इन्होंने क्या किया भाई, अब इन्होंने देख लिया कि अब अगर हम थोड़ा चीजें को रिलीज नहीं करेंगे, ये सारे लोग तो हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, ANC वाले लोग और साउथ अफ्रीका के लोग हमारे ऊपर पूरा चढ़ जाएंगे। सो द ब्रिटिशर्स ईज्ड लिटिल थिंग्स, जैसे कि उन्होंने सेंसरशिप थोड़ी हटा दी मीडिया से, वो जो भी चाहते हैं फ्रीली पब्लिश कर सकते हैं, ANC पे थोड़ा सा बैन लिफ्ट कर दिया और ये सब कर दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, नेल्सन मंडेला जी इधर जो थे, नेल्सन मंडेला जी, मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, इधर नेल्सन मंडेला जी जो थे 1964 में, अगर क्वेश्चन पूछे कि 1964 से आपका जो ANC का जो प्रोटेस्ट था वो और जोर से क्यों होने लगा, व्हाट ट्रिगर्ड मोर इन्फ्लुएंस टू ANC,
to protest? इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला. Because in the year 1964, after the ANC was banned, Nelson Mandela, with a group of his members of or his community, stood up to take their stand. But in the year 1964, Nelson Mandela was sentenced to jail. उनको prison में sentenced to, he was ही वेंट इनटू द जेल. उनको जेल में जो है डाल दिया गया था. और इस चीज पे, जैसे होते हैं ना, अब तो आग थी, पहले आग जल रही थी, आग में घी और डाल दिया क्योंकि उन्होंने उनका लीडर उनसे छीन लिया. तो अब प्रोटेस्ट जो है और पावर से होने लगा, और लोगों ने प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने लगा. ब्रिटिशर्स ने थोड़ी सी ईजमेंट दे दी. और 28 ईयर्स बाद जो है, आफ्टर नेगोशिएशन एंड एवरीथिंग, नेल्सन मंडेला जी बाहर, क्या हुआ, आफ्टर नेगोशिएशन एंड ऑल दीज थिंग्स, finally on 26th April of 1994, just imagine how late they got independence. कितना न्यूली इंडिपेंडेंस इनको मिला है. दिस इज अभी 30 इयर्स भी नहीं हुए होंगे फॉर देयर इंडिपेंडेंस. सीरियसली, इतना इनको न्यूली इंडिपेंडेंस मिला है. और 28 इयर्स बाद, इतना लड़ झगड़ने के बाद, ये सब पूरा करने के बाद, उनको जो है इंडिपेंडेंस मिल गया. और 28 इयर्स बाद हमारे नेल्सन मैंडेला जी जो थे, वो जेल से छूट गए. और let's continue from here. South Africa got independence from Britishers in the year 1994. Very important point. Aftermath. ये पूरा पेज very important है. प्लीज अपने माइंड में इसको रख लेना ये पेज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये. नेल्सन मैंडेला became the first president after being released from the prison for 28 years. ये याद रखना कि नेल्सन मंडेला जेल गए थे इन द ईयर ही वेंट टू द प्रिजन. He was imprisoned in the year 19 19 नहीं 19 नहीं 1964. Yes, Nelson Mandela was imprisoned in the year 1964, and after 28 years, when South Africa got independence, he came out of the prison and he was the first one to become the president of the newly freely democratic country. 2 साल बाद डिबेट्स और डिस्कशंस के बाद, जैसे इंडिया को भी 2 साल लगे थे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वैसे ही in the very same manner, after 2 years of debate and discussion, South Africa got its constitution. It is a very inclusive constitution and provides right to equality. बहुत अच्छा constitution है, one of the finest constitution after Indian constitution इसको बोला जाता है. और specially right to equality provide करता है, क्योंकि इतने साल बाद, if you are being discriminated again and again and again on the basis of your color, on the basis of your racial रेस, देन डेफिनेटली राइट ऑफ इक्वालिटी तो सबसे पहला राइट उनको मिला था. ब्लैक लीडर्स agreed to forgive whites and build a country based on equality of all races. This is very important point. And friends, see कितने अच्छे थे साउथ अफ्रीका के लोग. उन्होंने ब्लैक लीडर्स ने सोचा कि हम वाइट लोगों को माफ कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीजें की, बट स्टिल दे वांटेड ईच एंड एवरीथिंग टू बी डेमोक्रेटिक. वो चाहते थे कि सबके पास राइट टू इक्वालिटी हो, सारे आराम से इस कंट्री में, इस पूरे वर्ल्ड में पीसफुली रहें, और किसी के साथ रायट्स या डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडिसेस वगैरह ना हो. So here is the preamble of the South Africa. अभी थोड़ी picture blur है, but you can just look at this preamble. You can open up your books right now and you can open this preamble at page number 50. इसमें कुछ नहीं लिखा है preamble में, यही लिखा है that we the people and जो स्टार्टिंग की लाइंस होती हैं, और फिर इधर लिखा हुआ है वही चीज जो मैंने इधर लिखा, दैट द ब्लैक लीडर्स एग्री टू फॉरगिव वाइट्स टू बिल्ड अ कंट्री बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस. इन्होंने बोला कि आप स्वेयर करो कि आप जो है अब बुरा नहीं मानोगे कि जो पास्ट में हुआ, आर पास्ट वाज पास्ट एंड वी लर्न फ्रॉम आर पास्ट. हम जिधर भी अभी खड़े हैं, इट इज बिकॉज ऑफ आर पास्ट. और अभी के जो लोग हैं, वी शुड बी फ्रेंडली विद देम एंड वी शुड लिव इन अ फ्रेंडली एंड अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट. ये देखिए फैक्ट्स.
ANC was known as the umbrella of South Africa as it spoke for the people. ANC को हम एक umbrella party भी बोलते थे क्योंकि वो लोगों के लिए बोलता था. It had a voice. South Africa is known as the rainbow nation because of its different types of people from all different races. So अब ये चीज मैंने इधर ऐसे जो क्रॉस की हुई है, you might be wondering, you can just look at this gif. इसमें दिखा रहे हैं कि white people के बारे में कैसे discrimination होता था, whites only, how they were being discriminated, how the apartheid system was being worked out. And this is what our new our South African constitution says कि past को छोड़ो, black, white, everybody is the same. We must live in the same environment happily and peacefully after so much of struggle which has been there in our past. Let's leave the past in the past. And Rainbow Africa क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखो इतने सारे different, इधर colored भी रहते हैं, whites भी रहते हैं, blacks भी रहते हैं, Indians भी रहते हैं, immigrants, refugees, all the people can live in South Africa. And that's why, because South Africa is such a varied country with a lot of different types of races present inside, that's why South Africa is known as the rainbow nation of the world. So thank you everybody. इधर हमारी पीपीटी एंड होती है. और सो आर लेक्चर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एम्फेसिस देंगे और कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे बनते हैं, advantages of constitution, why is constitution important. All these things will be covered in our next lecture. Thank you so much for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.